Pledge. I, Kamaljeet, commit to be vigilant and bear in mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions that prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behavior. To always wear a mask, face cover, especially when in public places. To maintain a minimum distance of 6 feet from others. To wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together, we will win this fight against COVID-19. Thank you. Welcome to English class. Today, we will start our story. Story name: A Horse and Two Goats. We already discussed our story until now. Now let's start the rest of part. He noticed now a sort of vehicle coming down at full speed. It looked like both a motor car and bus. He used to be intrigued by the novelty of such spectacles, but of late work from was going on the source of river on the mountain, and astonishment of peoples and traffic went past him, and he took it all casually and described to his wife later in the day everything he saw. तो वो क्या करता है, जो भी वहाँ से गुज़रता है, व्हीकल गुज़रता है, बस गुज़रती है, कोई मोटर गुज़रती है, लोग गुज़रते हैं जो लेट नाइट अपने वर्क से आते हैं, ट्रैफिक होता है पीपल का, वो सब अपनी वाइफ को जाके बताता है जो कि उसने पूरे दिन में देखा होता है. टुडे व्हाइल ही ऑब्जर्व्ड द येलो व्हीकल कमिंग डाउन, ही वाज वंडरिंग हाउ टू डिस्क्राइब इट लेटर टू हिज वाइफ व्हेन ही sputtered and stopped in front of him. A red-faced foreigner who had been driving it got down and went round it, stooping, looking and honking under the vehicle. Then he straightened himself up, looked at the dashboard, started in Moni's direction and approached him. Excuse me, is there a gas station nearby, or do I have to wait until another car comes? He suddenly looked up at the clay horse and cried, "Marvelous," without completing his sentence. Muni felt he should get up and run away and crossed his ears. He could not readily put his limbs into action. तो क्या होता है, वो एक दिन ऑब्जर्व करता है येलो व्हीकल में क्या आता है, एक फॉरनर आता है जो वहाँ पे आके रुकता है. वो उसके बारे में अपनी वाइफ को बाद में बताता है. तो क्या करता है, वो वहाँ पे रुकता है, उससे पूछता है कि यहाँ पे कोई गैस स्टेशन है नियर, या फिर उसको किसी और कार के आने का वेट करना पड़ेगा. और अचानक उसकी नज़र कहाँ पे जाती है, जो क्ले का बना हुआ स्टैचू था उसको वो बहुत सुंदर लगता है. तो उसको क्या बोलता है, मार्वलस. तो वो वहाँ पे रुक जाता है विदाउट कंप्लीटिंग हिज सेंटेंस. द रेड फेस्ड मैन वॉर खाकी क्लोथ. तो उसने क्या किया था, खाकी क्लोथ्स वेयर किए थे. इवेंचुअली अ पुलिसमैन और अ सोल्जर. तो जैसे कि हमारी कंट्री में मोस्टली पुलिसमैन या फिर सोल्जर पहनते हैं. मुनी सेड टू हिमसेल्फ ही विल चेस और शूट इफ़ आई स्टार्ट रनिंग. तो मुन्नी को लगा कि वो उसे शूट कर देगा अगर वो रनिंग भागना शुरू कर दे. सम डॉग चेज ओनली दोज हु रन, ओ शिवा प्रोटेक्ट मी. तो उसने क्या बोला कि जब कोई रन करता है तो उसको डॉग चेस कर लेते हैं, पकड़ लेते हैं. तो उसने बोला, शिवा प्रोटेक्ट मी, मुझे प्रोटेक्ट करो. आई डोंट नो व्हाई दिस मैन शुड be after me. Meanwhile, the foreigner cried, "Marvelous," again nodding his head. He paced around the statue with his eyes fixed on it. Muni sat frozen for a while and then fidgeted and tried to edge away. Now the other man suddenly pressed his palms together, smiled and said, "Namaste, how do you do?" तो उसने क्या बोला कि उसने दोबारा से फिर बोला मार्वलस और अपना सिर हिलाया, नाउडिंग हिज हेड, एंड देखा कि जो स्टैचू की तरह वो वहाँ पे मुन्नी की तरह से फ्रोज़न हो गया था उसकी बातें सुन के. और उसने क्या किया, सडनली उसने उसका हाथ प्रेस किया, स्माइल किया और उसे क्या बोला, नमस्ते, हाउ डू यू डू, आप कैसे हो. एट विच मुनी स्पोक द ओनली इंग्लिश एक्सप्रेशन ही हैड लर्नड, येस नो. तो उसने मुन्नी को क्या किया, उसके एक्सप्रेशंस को नोट किया, उसने येस नो में आंसर दिया. हैविंग एक्सेप्टेड हिज इंग्लिश वोकैबुलरी ही स्टार्टेड इन तमिल. तो उसने उसको इंग्लिश वोकैबुलरी थोड़ी सी आती, तो उसने अपने तमिल में स्टार्ट कर दिया. माई नेम इज़ मुन्नी, दीज टू गोट्स आर माइन एंड नो वन कैन see it, though our village is full of slanders these days. Who will not hesitate to say that what belongs to man does not belong to him. तो उसने क्या बोला, मेरा नाम मुन्नी है, ये 2 गोट्स मेरी हैं, उसके बिना कुछ भी मेरा नहीं है, तो मैं इस विलेज को यहाँ पे बिलोंग करता हूँ और
यहाँ से आया हूँ. The foreigner faithfully looked in the direction indicated by Muni's finger, gazed for a while at two goats and hillocks, and while with a puzzled expression took out his silver cigarette case and lit a cigarette. तो उसने उस डायरेक्शन में देखा, यहाँ पे मुन्नी फिंगर आउट कर रहा था और उसकी टू गोट्स थी, रॉक्स था वहाँ पे, और उसने अपना सिल्वर सिगरेट केस उठाया, वहाँ से एक सिगरेट ली और उसे सडनली रिमेंबरिंग द कर्सेस ऑफ द सीजन ही आस्क्ड डू यू स्मोक. तो उसने उससे सिंपली पूछा कि आप स्मोक करते हो. स्मोक. मुन्नी आंसर यस नो. यूरोपियन द रेड फेस्ड मैन टूक अ सिगरेट एंड गिव इट टू मुन्नी. तो उसने एक सिगरेट ली और मुन्नी को दे दी. हु रिसीव्ड इट विद सरप्राइज हैविंग हैड नो ऑफर ऑफ अ स्मोक फ्रॉम एनीवन फॉर ईयर्स नाउ. तो उसने सरप्राइज हुआ क्योंकि आज तक उसको किसी ने भी क्या नहीं किया था, सिगरेट ऑफर नहीं की थी. देन ही हैड ऑलवेज वांट टू स्मोक अ सिगरेट. ओनली वंस डिड द शॉप मैन गिव हिम वन ऑन क्रेडिट एंड ही रिमेंबर्ड हाउ गुड इट हैड टेस्टेड. तो उसने सिर्फ एक टाइम स्मोक किया था जब उसको एक शॉपकीपर ने क्रेडिट में एक सिगरेट दी थी, तो उसको पता था कि उसका टेस्ट बहुत अच्छा होता है. द अदर फ्लिक द लाइटर ओपन एंड ऑफर्ड अ लाइट टू मुन्नी. तो उसने अपना लाइटर लिया, उसको फ्लिक किया और मुन्नी को ऑफर किया. मुन्नी फेल्ट सो कन्फ्यूज अबाउट हाउ टू एक्ट दैट ही ब्लू ऑन इट एंड पुट इट आउट. तो उसको थोड़ा सा कन्फ्यूज हो गया कि कैसे वो उससे ब्लो कर रहा है और उसमें से आग कैसे निकल रही है. टू अदर पर्सन बट अनडॉन्टेड फॉरिस्ट हिज लाइटर प्रेजेंट इट अगेन एंड लिट मुन्नीज सिगरेट. तो उसने उसका लाइटर लिया और उसको सिगरेट जला दी. मुन्नी ड्रू अ डीप पफ एंड स्टार्टेड कफिंग. इट वाज शेकिंग नो डाउट बट एक्सट्रीमली प्लेजेंट. तो उसने उसके बाद उसको एक डीप, जब उसने उसको सिगरेट को स्मोक करना शुरू किया, डफ मतलब काफ़ी डीप पफ किया, तो उसको क्या हो गया, कफ हो गया. और when his cough subsided he wiped his eyes and took stock of the situation, understanding that the other man was not an एनक्यूस्टर ऑफ एनी काइंड. तो उसको देखा कि उसकी सिचुएशन को, उसने अपनी आइज़ को वाइप किया, उसने देखा कि उसको तो किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है. तो येट इन ऑर्डर टू मेक श्योर ही रिमेन्ड वेरी, नो नीड टू रन अवे फ्रॉम अ मैन हु गिव हिम सच अ पोटेंट स्मोक. हिज हेड वॉज रीलिंग फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ वन ऑफ those strong American cigarettes made with roasted tobacco. The man said, I came from New York, took out a wallet from his hip pocket and presented his card. तो उसने क्या किया कि उसको पता था कि जो अमेरिकन सिगरेट्स होती हैं वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं क्योंकि वो रोस्टेड तंबाकू से बनी होती हैं. तो वो कहाँ से आया था, उसने बोला कि आई कम फ्रॉम न्यूयॉर्क, मैं न्यूयॉर्क से आया हूँ. उसने अपना वॉलेट निकाला अपनी हिप पॉकेट से एंड उसको कार्ड दिखाया. Muni shrunk away from the car. Perhaps he was trying to present a warrant and arrest him. तो उसको लगा कि कहीं वो उसको कोई अरेस्ट वारंट तो नहीं दिखा रहा है. बीवियर ऑफ खाकी वन पार्ट्स ऑफ हिज माइंड वॉन्ट. तो उसके एक पार्ट माइंड के एक पार्ट ने वॉन्ट किया कि खाकी पहने हुए लोगों से थोड़ा अवेयर रहना, सावधान रहना. टेक ऑल द सिगरेट्स और वट एवर इज़ ऑफर्ड बट डोंट गेट कॉट. तो सब कुछ जो वो ऑफर करे ले लेना बट पकड़े नहीं जाना. बीवेयर ऑफ खाकी. ही विश्ड ही वर नॉट 70 एज अ सोप मैन हैड. तो उसकी विश थी कि वो ऐसा मैन नहीं होगा कि जो ऐसा कुछ करेगा. एट 71 डिडंट रन बट सरेंडर्ड to whatever came. He could only ward off trouble by talk. तो उसको लगा कि वो सरेंडर नहीं करेगा, चाहे कुछ भी हो जाए वो भागेगा नहीं, वो सरेंडर कर देगा, whatever जो भी होगा होना होगा. So he went on all his chase Tamil or which curriculum was famous. तो उसने जो भी बोला अपनी तमिल में बोल दिया. He said before God, sir, भगवान who sees everything, I tell you sir that we know nothing of the case. If the murder was committed, whoever did it will not escape. Bhagwan is all seeing. Don't ask me about it. I know nothing. A body had been found mutilated and thrown under a tamarind tree at the border between Kritima and Kupona a few weeks before, giving rise to much gossip and speculation. तो उसने बोला कि मैं उस मर्डर के बारे में कुछ भी नहीं जानता. जिस किसी ने भी मर्डर किया है उसको भगवान देखता होगा. बॉडी कहाँ पे मिली थी? टर्मिनल ट्री के नीचे मिली थी, बॉर्डर के बिटवीन क्रितिमा एंड क्यूपमा के a few weeks before, giving rise to much gossip of, जो उसकी गॉसिप हो रही थी उससे पता चला था. मुनी एंड
एक्सप्लेनेशन, उसने अपनी एक्सप्लेनेशन की है। एनीथिंग इज पॉसिबल देयर, तो कुछ भी पॉसिबल हो सकता है। पीपल ओवर देयर विल स्टॉप एट नथिंग। द फॉरेनर नोडेड हिज हेड एंड लिसन कॉशियसली थ्रू द अंडरस्टैंड नथिंग। तो मुनि ने अपनी पूरी एक्सप्लेनेशन दी, अपनी सब से सब कुछ पॉसिबल तो भी था उसने बोल दिया, कुछ भी था, बट उसके समझ में ओवर देयर विल स्टॉप एट नथिंग, तो वहाँ पे जो लोग थे वो कुछ भी नहीं कर सकते। फॉरेनर नोटेड हिज हैड, उसने अपना हेड दिखाया, बट लिसन, वो उसको पूरे ध्यान से सुन रहा था, बट वो कुछ भी समझ पा नहीं रहा था। आई एम श्योर यू नो व्हेन दिस हॉर्स वॉज मेड, सैड द रेडमैन एंड स्माइल्ड इनग्रेंडिंगली। तो उसने बोला कि आप जानते हो ये हॉर्स कब बना था। रेडमैन ने बोला एंड थोड़ा सा जैसे फेस पे स्माइल करते होते हैं वैसे बोला। मुनी रिएक्टेड टू द रिलैक्स्ड एटमॉस्फेयर बाय स्माइलिंग हिमसेल्फ एंड प्लेडेड, प्लीज़ गो अवे सर, आई नो नथिंग। तो मुनि ने रिलैक्स किया जब देखा कि माहौल थोड़ा सा हसीन, मतलब थोड़ा सा स्माइलिंग सा बन चुका है, तो उसने बोला प्लीज़ गो अवे सर, आप जाओ, मुझे कुछ नहीं पता। आई प्रॉमिस वी विल होल्ड हिम फॉर यू, इफ़ वी सी एनी बैड कैरेक्टर अराउंड एंड वी विल bury him up to his neck in a coconut pit if he tries to escape, but our village has always had a clean record, must definitely be the अदर विलेज। तो उसने बोला कि मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि हमारे वहाँ पे कोई भी बैड कैरेक्टर नहीं है, अगर हमें दिखा तो हम उस पर कोकोनट पेट करेंगे, उसकी नेक पे उसको पकड़ने की कोशिश करेंगे, बट हमारे विलेज का रिकॉर्ड जो है वो पूरा क्लीन है, आप किसी और विलेज में जाके ट्राई करो। नाउ द रेड मैन इम्प्लोर्ड, प्लीज़ प्लीज़ आई विल स्पीक स्लोली, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। तो जो रेड मैन था उसने बोला कि प्लीज़ मैं थोड़ा स्लो बोलता हूँ, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड मी, आप मुझे समझने की कोशिश करो। कांट यू अंडरस्टैंड इवन अ सिंपल वर्ड ऑफ इंग्लिश, कि आप इंग्लिश का एक सिंगल वर्ड भी समझ नहीं पा रहे हो। एवरी वन इन द कंट्री सीम्स टू नो इंग्लिश, आई हैव गॉटन अलॉन्ग विद इंग्लिश एवरीवेयर इन दिस कंट्री, बट यू डोंट स्पीक इट, हैव यू एनी रिलीजियस और पिक्चर्स अगेंस्ट इंग्लिश स्पीच। तो उसने बोला कि यहाँ पे मोस्टली जो पीपल होते हैं उनको इंग्लिश आती होती है, पर आपको इंग्लिश क्यों नहीं आती, कि ये कोई आपका स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर्स है जिस वजह से, या फिर कोई रिलीजियस रीज़न है जिस वजह से आप इंग्लिश नहीं समझ रहे हो, बट यू डोंट स्पीक इट, आप समझ नहीं पा रहे हो। मुनि मेड सम इंडिसेंट साउंड्स इन दिस हिज थॉट एंड शुक हिज हेड। तो मुनि ने कुछ अजीब से साउंड अपने थॉट में किए एंड अपना सिर हिला दिया। एनकरेज द अदर वेंट on to explain at length, uttering each syllable with care and elaboration. Presently he settled over and took a seat beside the old man, explaining, you see, last August we probably had a hottest summer in history, and I was working in short sleeves in my office on the 40th floor ऑफ द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग। तो उसने अपने बारे में बताया कि कैसे वो लास्ट टाइम के बारे में बता रहा था कि उसने जो लास्ट टाइम था वो समर का बहुत अगस्त का टाइम था और बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इस सिटी में सबसे ज़्यादा गर्मी थी। उसने शर्ट्स स्लीव्स, तो वो अपने ऑफिस में वर्क कर रहा था विद स्लीव्स के 40th फ्लोर पे एम्पायर स्टेट बिल्डिंग पे। वी हैड अ पावर फेलियर वन डे, यू नो, and there I was stuck for 4 hours, no elevator, no air conditioner। तो उसने बोला कि वहाँ पे पावर फेलियर हो गया था एक दिन, तो वो वहाँ पे 4 घंटे के लिए स्टक रहा था। नो एलिवेटर, नो एयर कंडीशन, ऑल द वे इन द ट्रेन आई केप्ट थिंकिंग, एंड the minute I reached home inconsiderately I told my wife Ruth we will visit India दिस विंटर, इस टाइम टू लुक एट अदर सिविलाइजेशन। तो उसने अपनी वाइफ को जाके बोला था कि वो इस विंटर में इंडिया जाके वहाँ पे घूमने जाएंगे और सिविलाइजेशन को पास से देखेंगे। नेक्स्ट डे शी कॉल द ट्रैवल एजेंट फर्स्ट थिंग एंड टोल्ड हिम टू फिक्स इट, एंड सो हियर आई एम। तो उसने बोला कि नेक्स्ट डे उसने ट्रैवल एजेंट को बुलाया और सारा कुछ फिक्स कर दिया, तो इस वजह से वो वहाँ पे आया। रथ केम विद मी बट इज स्टेइंग बैक एट श्रीनगर एंड आई एम द वन डूइंग द राउंड्स एंड ज्वाइनिंग हर लेटर। तो उसने बोला कि वो उसके रथ उसके साथ आई है, बट वो यहाँ स्टेइंग नहीं है, वो श्रीनगर बैक चले गई है और वो पूरे वर्ल्ड को राउंड करना, वन डूइंग द राउंड्स एंड ज्वाइनिंग हर लेटर। जब वो सारा कुछ देख लेगा तो वहाँ पे इसको लेटरली वो ज्वाइन करेगी, ठीक है।
Munni looked reflective at the end of this long oration and said rather feebly, yes, no, as a concession to the other's language, and went on in Tamil. When I was this high, he indicated a foot high I had heard my uncle say. तो मुन्नी उसको वैसे ही देखता रहा विदाउट एनी, उसके साथ हो, उसको कुछ भी पता नहीं चल रहा था, वो जैसे नो में भी आंसर नहीं देने पा रहा था लैंग्वेज की वजह से, वो अपनी तमिल में. नो वन कैन टेल वट ही वॉज प्लानिंग टू से एज द अदर इंटरप्टेड हिम एट दिस स्टेज टू आस्क बॉय वट इज़ द सीक्रेट ऑफ योर टीथ, हाउ ओल्ड आर यू. तो उसने बोला okay dear student, we will continue into the next assignment. Thank you, have a good day.